Good morning, student. Hope you are enjoying your holiday with your good study and your important work. Let's again come back in the class. So, today I will discuss about the biological classification, and in this biological classification, we will see how the living organisms classified into different groups. Clear? As you know that this classification uh, are have been done during the time of Aristotle and Theophrastus. Clear? So, the origin of the classification of organisms first attempt by the Aristotle and his pupil Theophrastus. Now, what he did actually, Aristotle and Theophrastus involve the uh, some characters, not some, but they include few morphological characters. So, on these few morphological characters, he actually classified the plant organisms into the herb, shrub, as well as trees. So, Aristotle, who first classified plant into three subgroups, in like herb, shrub, as well as trees, whereas Theophrastus, his pupil of Aristotle, includes animals on the basis of the blood color, means RBC's color. So he put all organisms which having the red blood cells, colored red blood cells, and organisms which are not having red blood cells. So, from this classification, uh, evolution of the organisms into two different groups, animals as well as plants. Clear? So, the mode of the classification have applied by the Aristotle and his pupil Theophrastus, the artificial system of the classification. क्लियर? सो हमने पहले ही पढ़ा है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या देखते थे कि हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए थे. तो सेम एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ कर प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था. So this type of classification is known as the earliest classification. Clear? Now, after the so this artificial system of classification by Aristotle and Theophrastus is done up to the 300 BCs. ठीक है, तो इसके आसपास की हुआ था. आफ्टर दैट Carolus Linnaeus, who modify this Aristotle and Theophrastus classification, and he actually divided the all living organism into two kingdoms. First kingdom is Plantae, and second kingdom is Animalia. Clear? So so from the Aristotle and Theophrastus to Carolus Linnaeus, the biological classification continuously going to modify, and now we have already a modern biological classification, that is three domain
system of classification. So these three domains system of classification. Another classification also proposed by different scientists from different time. So there are four kinds of modified kind of biological classification. So now this biological classification involve two system of classification, two kingdom of classification, three kingdom of classification, four kingdom of classification, and five and three domain classification of system. सो इन सभी में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एरिस्टोटल से कैरोलस लिनियस ने और बाकी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. क्लियर? कैरोलस लिनियस who was also known by the binomial classification nomenclature. ठीक है, तो कैरोलस लीनियस proposed this two kingdom of classification after the Aristotle and Theophrastus. Carolus Linnaeus also is known as the father of modern classification, कह लीजिए father of taxonomy और father of botany. तो ये टेक्सोनॉमी और बॉटनी के फादर के रूप में माने जाते हैं. नाउ what is the basis of their classification to classified organism? So he used to mode of nutrition. ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया. फर्स्ट किंगडम प्लांटी एंड सेकंड एनिमेलिया. और इस प्लांटी एंड एनिमल्स में इन्होंने प्लांट किंगडम में सारे यूनिसेल बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, फंजाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था. तो टू किंगडम में क्या किया था? टू किंगडम में पहला प्लांटी एंड दूसरे में एनिमेलिया. अब इनमें इन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो किंगडम में डिवाइड किया. प्लांटी में इन्होंने क्या इंक्लूड किया है? बैक्टीरिया, देन फंजाई, देन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो जितने भी यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर उन सभी को एक में रख दिया. और एनिमल्स में इन्होंने क्या रख दिया? एनिमल्स में इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को रख दिया. ठीक है, जो कि आजकल प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर मेटाजोआ. सो इन्होंने मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में रख दिया है. सो अब बट आफ्टर सम few years, this plant kingdom was not acceptable by other scientists, because there are various other different other characters which are used to classify the living organism. एंड कैरोलस लिनियस के टाइम में माइक्रोस्कोप का कोई भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए सिंपली इन्होंने न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल्स को डिवाइड किया है. तो प्लांट में इन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है. और एनिमल में इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया है. तो
एडवांटेज तो ये रहा कि ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है. दिस इज़ द एडवांटेज, दिस इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट डिसएडवांटेज ये रहा है कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को प्लांट किंगडम में रख दिया है, और साथ ही साथ तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ही किंगडम में, प्लांट किंगडम में इन्वॉल्व कर दिया है. क्लियर? So that is the drawback of the Carolus Linnaeus or two kingdom of classification. Now this two kingdom classification was further modified by the scientist Ernest Haeckel, and he proposed three kingdom of classification. So this Ernest Haeckel in 1866 he modified the Carolus Linnaeus classification, means two kingdom of classification, and he used to classify organism on the basis of mode of nutrition and some other kind of characters, morphological characters. And from this morphological and mode of nutrition, he includes another kingdom that is called Protista. Protista is the third kingdom of classification which was used by the Ernest Haeckel. And in this Protista, we have three kind of classification, three kingdom: Protista, Plantae and Animalia kingdom. And he classified organism into three different kingdoms. So what is the basis of the classification? He used to morphological complexity, tissue system and mode of nutrition. मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स, उनकी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं, कौन से यूनिसेलुलर हैं और कौन से नॉन यूनिसेलुलर हैं. तो उसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने थ्री किंगडम यूज़ किया है. अब इन्होंने प्रोटिस्टा में he used Protista to classified to put protozoa, fungi and bacteria into the Protista. तो अर्नेस्ट हिकल ने क्या किया कि थ्री किंगडम्स में जो प्लांट से बैक्टीरिया को अलग करके, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सभी को अलग करके एक ग्रुप बना दिया है जिसमें रख दिया है प्रोटिस्टा में. ठीक है, तो प्रोटिस्टा हो गया, एंड सेकेंड प्लांटी हो गया, एंड थर्ड हो गया एनिमेलिया. तो इन्होंने इस प्रोटिस्टा में प्लांट से फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी को निकाल करके इसमें रख दिया प्रोटिस्टा में. तो in Protista, having the protozoa, fungi and bacteria, so by the Ernest Haeckel. So from here three kingdom classification involve Protista, Plantae and kingdom, and Protista includes the protozoa, fungi and bacteria and other algae वगैरह. तो इन सभी में इन्होंने यह रख दिया है. So but this three kingdom classification was not acceptable and get modified on other साइंटिस्ट. लिमिटेशन क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया है कि ऑर्गेनिज़म न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज़म को एक साथ रख दिया है. ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम ये था कि फंजाई और बैक्टीरिया, इन दोनों को एक ही में रख दिया था. तो ये एक लिमिटेशन था जो आगे चल कर के फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इम्प्रूव किया गया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस किंगडम वाज
proposed by the H.F. Copeland in 1956. सो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब माइक्रोस्कोप का ओरिजिन हो गया, माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो गया, तो माइक्रोस्कोप की इसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया है, उनके इंटरनल फीचर को स्टडी किया गया है। तो H.F. Copeland used another kingdom, that is Monera. ठीक है, तो Monera is used or included by the H.F. Copeland, and in this Monera, on the basis of microscopic studies of the living organism, he kept all prokaryotic organism into the Monera. क्लियर। सो कॉपलैंड की तरफ से ये बहुत एडवांटेज था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो पहले प्रोटोजोआ में रखे गए थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो आगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो 4 किंगडम में मोनेरा ऐड किया गया है एक नया किंगडम के तौर पे, और इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक अपनी जगह मिल गई। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दीज आर दी bacteria which are used classified into the Monera. It is grouped into as a prokaryotic organism. तो जब डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की हुई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके हिसाब उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट का नाम दे दिया गया। और वो प्रोकैरियोट कौन होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया। सो इसको क्लासिफाइड कर गया है मोनेरा। तो 4 किंगडम में प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया तो 3 किंगडम के ही क्लासिफिकेशन के मोड हैं, लेकिन 4 में मोनेरा ऐड हो गया है। और मोनेरा को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जब माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो न्यूक्लियस उनके अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर थे, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। तो उस ट्रू न्यूक्लियस के ना होने की वजह से उनको एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया और उसको मोनेरा में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस मोनेरा में बैक्टीरिया का एक प्रॉपर जगह हो गया। लेकिन प्रोटिस्टा में अभी भी फंजाई एंड प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी प्रेजेंट थे जो कि उनकी पोजीशन सेटिस्फाइड नहीं थी। तो आगे इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द 4 किंगडम। मोनेरा को यूज़ करके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में रख दिया गया है, दैट इज़ मोनेरा। बट स्टिल प्रोटिस्टा में फंजाई और एल्गी और प्रोटोजोआ प्रेजेंट थे। दैट इज़ द डिलिमिटेशन, दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन विच आर नॉट क्लासिफाइड the fungi and protozoa, because this fungi and protozoa both are different organism. That's why this 4 kingdom of classification was modified, was corrected by the R.H. Whitaker in 1969. So this is the latest classification, that is called 5 kingdom classification. So 5 kingdom classification was led by the Robert H. Whitaker, and he used another kingdom which provide a special place to the fungi which are not included into the 4 kingdom classification. So reason क्या था,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कि जो फंजाई 4 किंगडम में प्रोटिस्टा में रखा हुआ था, वो अब उसको एक अलग किंगडम में, फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया है, और दैट किंगडम इज़ कॉल्ड फंजाई. Fungi is another kingdom in which all kind of fungi are placed into the kingdom fungi. So from this fungi is another kingdom. Now up to here 5 kingdom. So 4 kingdom तो already divided थे, Monera, Protista, Plantae and Animalia. But there is missing of the correct place of the fungi, which are corrected, which are modified by the Whitaker, and he classified fungi and placed into the separate kingdom, that is called fungi kingdom. सो अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि फंजाई का अलग हो गया, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया. सो मोनेरा में ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड थे, वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स बैक्टीरियाज, ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर पुट इनटू द मोनेरा, बट स्टिल this further modified by the latest by the scientist. आगे देखेंगे प्रोटिस्टा में अभी भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो थे प्रोटोजोवा और कुछ एल्गी, जो कि एल्गी का एक इम्प्रॉपर पोजीशन था इन द 5 किंगडम, 4 किंगडम, 3 किंगडम. तो अब लेकिन फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया है, और प्लांटी और एनिमेलिया. सो दीज आर दी सेम किंगडम, बट फंजाई was introduced by the Robert H. Whitaker to place fungi into a separate kingdom. So Monera में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवंस, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर प्रोटोजोवन प्रेजेंट हो गए, एल्गी भी इसमें आ गए. तो प्रोटिस्टा के लिए जगह अभी प्रोटिस्टा को मॉडिफाई करना था. नेक्स्ट जो हो जाएंगे वो फंजाई एंड प्लांटी एनिमेलिया. सो प्लांटी में सारे प्लांट्स ऑर्गेनिज्म सच एज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, ये सभी को ऐड किया गया है, बट कहीं ना कहीं एल्गी को मिसप्लेस किया गया, लेकिन बाद में एल्गी को भी और उनके फोटोसिंथेटिक नेचर के अकॉर्डिंग उनको प्लांटी में शिफ्ट कर दिया गया. और एनिमल्स में जो स्पॉन्जेस वगैरह हैं, स्पॉन्जेस हैं, जेली फिशेस हैं एंड फिशेस हैं, सभी को एनिमेलिया ग्रुप में रख दिया गया है. तो advantage of the 5 kingdom of classification is to provide a separate kingdom for placing the fungi. ठीक है, and this fungi is included in the kingdom fungi. So that is the advantage of the Robert Whitaker. And but there is a further now what is the question ये है कि Whitaker ने कौन सा which kind of bases which were used by the Whitaker. Actually Whitaker used more characteristic feature of the organism, like complexity of cell structure, means कि सेल प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सेल टाइप को यूज़ किया है कि सेल यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिज़म को भी डिफ़ाइन किया, ऑर्गेनिज़म क्लासिफाइड किया था.
So this is the advantage of the five kingdom of classification. Means he provide separate kingdom, that is fungi kingdom, and he also used to phylogenetic relationship of the organism to actually classify the organism on the basis of their ancestor. So these are the advantage of the five kingdom of classification. But disadvantage क्या है कि still Whitaker does not differentiate or classified the unicellular or multicellular algae which are still present or which are still placed into the protista. Clear? So ये इन्होंने algae को separate जगह नहीं दिया. And he also does not classified the viruses. Clear? And he does not differentiate between archaebacteria and bacteria. उन्होंने बैक्टीरिया ऑलरेडी मोनेरा में प्रेजेंट थे, लेकिन बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनको अलग नहीं करें. तीसरा ये है कि एल्गी और प्रोटोजोआ को सेम किंगडम में रख दिया. तो ये मैंने पहले ही बताया, दिस आर द ड्रॉबैक ऑफ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. आगे चल करके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है नाउ. सो अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में रख दिया, एनिमल्स को एनिमल में रख दिया, बैक्टीरिया को मोनेरा में प्रेजेंट कर दिया, प्रोटिस्टा और फंजाई को फंजाई में यूज़ कर दिया. लेकिन प्रोटिस्टा के लिए अभी भी क्लासिफाइड करना ज़रूरी था, क्योंकि एल्गी हमें पता है कि एल्गी एक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. मीन्स इट इज़ अ प्लांट. So that's why we have to modify, we have to place algae into the plant kingdom. So the latest version of the classification, that is the three domain of classification. So domain क्या होते हैं? Domain is the super kingdom. ठीक है, जो किंगडम के जो अपर लेवल का जो ग्रुप होता है, दैट इज़ डोमेन. और डोमेन में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्री डोमेन में क्लासिफाइड किया गया है. एंड दिस क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूज़ किया है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. इस थ्री डोमेन में तीन डोमेन को इन्होंने यूज़ किया है. दैट इज़ फर्स्ट क्या था कि इन्होंने यूज़ किया है यूकैरियोट. सॉरी, वन सेकेंड. तो जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर द taxonomy, but still three domain are most important classification which was modified by the कार्ल वुज. ठीक है, तो थ्री डोमेन को किसने दिया? कार्ल वुज. He was the scientist who actually work in classification of algae and protozoa. Actually he discriminate the protozoa with the algae, because this protozoa and algae both are not same class, same organism, because algae is the photosynthetic organism, because algae a autotrophic organism. So according to Carl Woese, he classified these algae and he protista algae and protozoa from protista, and he also classified the different bacterias. ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लास में सेपरेट करके थ्री डोमेन बनाया. तो वो क्या थे? यूकैरियोट,
यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड सेकंड क्या हो गया, यूकैरियोट, यूकैरिएटा, यूकैरिया। ठीक है, इन्होंने 3 डोमेन किया, यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। अब ये जो बैक्टीरिया थे ये थे प्रोटोकैरियोट और ये हैं यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूकैरियोटिक इज अ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो यूकैरियोट में इन्होंने प्लांट और एनिमल को यूज़ किया है। ठीक है, प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। सो इन्होंने यूकैरियोट में प्लांटी, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया है यूकैरियोट में। एंड प्रोकैरियोट को इन्होंने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं वो उन्होंने रख दिया है। आर्किबैक्टीरिया में कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे जैसे कि थर्मोफिलस बैक्टीरिया, हैलोफाइल्स बैक्टीरियाज, इन सभी बैक्टीरिया को आर्किया में पुट कर दिया गया। तो मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन is the 3 domain classification which are proposed by the Carl Woese and he actually divided the prokaryote and eukaryotes. ठीक है, prokaryotes grouped into 2 different domains, eubacteria and archaebacteria. Eubacteria include the bacteria, ठीक है, एंड बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ये सभी यूबैक्टीरिया में रख दिया। और आर्किया में इन्होंने प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया को रखा है जैसे कि हेलोबैक्टीरिया हो गए एंड हेलोबैक्टीरिया, थर्मोफाइल बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एवोल्यूशन के टाइम में से सरवाइव कर रहे हैं और ये इनके जो हैबिटेट हैं वो एक्चुअली डिफरेंट ओशन में और डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। तो हेलोबैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज विच आर फाउंड इन द saline habitat। ठीक है, एंड थर्मोफिलस बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरियाज विच आर सर्वाइव अबव द टेम्परेचर, मीन्स किसी ये हायर टेम्परेचर, ऐसे बैक्टीरिया जो हायर टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करे, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोफिलस बैक्टीरिया। मिथानोजीन्स बैक्टीरिया विच आर दोज बैक्टीरिया विच आर प्रोड्यूसिंग द methane chemical. So on the basis of the bacteria, the three domain are proposed by the Carl Woese. Clear? एंड यूकैरियोटिक में सेम उसी तरीके से था जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में था। 5 किंगडम में क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। These are 5 kingdom classification which are included in the eukarya by the Carl Woese in 3 domain classification. Whereas bacteria is classified means मोनेरा जो बैक्टीरिया के लिए जाना था, मोनेरा को इन्होंने निकाल करके यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया में शिफ्ट कर दिया है। सो आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, दीज आर द 2 different domain of the bacteria. So this all about the biological classification. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाइड किया गया।
ठीक है। बाद में जब कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग रखा, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि जो अपने फूड को बनाते थे उनको फोटोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो उन्होंने प्लांट को प्लांटी को एक किंगडम में कर दिया है प्लांट को, और एनिमेलिया को डिफरेंट एनिमेलिया किंगडम में कर दिया। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने दिया था। और कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे कि प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को एनिमल ग्रुप में रख दिया। लेकिन प्लांट में इन्होंने क्या कर दिया, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी और वो क्या बोलते हैं, और कुछ डिफरेंट यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रख दिया। नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक को प्लांट में रख दिया। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ एक दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम में रख दिया, दैट इज़ प्लांटी, और फंजाई प्रोटिस्टा को भी एक ही फंजाई और अदर बैक्टीरिया को प्लांटी में रख दिया, जो कि ये सही नहीं था। बाद में इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया है और उसको थर्ड किंगडम में बनाया गया है। थर्ड किंगडम इंक्लूड किया गया है फर्स्ट प्रोटिस्टा, एंड दिस थर्ड किंगडम में प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी से फंजाई एंड प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है इन थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाकी प्लांट और एनिमल में प्रोटोजोआ ही रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया है फोर किंगडम। फोर किंगडम में क्या हुआ है कि फोर किंगडम में एक नया किंगडम ऐड कर दिया गया है थ्री किंगडम को के साथ। तो थ्री किंगडम में क्या थे कि प्रोटिस्टा थे, प्लांटी और एनिमेलिया। फोर में मोनेरा दे दिया गया है। मोनेरा में क्या किया गया है कि जो बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा में शिफ्ट कर दिया गया है, मीन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रख दिया गया है। ठीक है। और प्रोटिस्टा में अभी भी फंजाई और एल्गी को एक साथ रख दिया गया था, जैसे कि थ्री किंगडम में था। प्लांटी और एनिमेलिया में वही ऑर्गेनिज्म थे जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा फोर किंगडम में यूज़ कर दिया गया है, और उस फोर किंगडम में मोनेरा में प्रोकैरियोटिक मीन्स बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है। जो कि अभी भी डिसएडवांटेज के रूप में ये जाना जाता है कि बैक्टीरिया को भी क्लासिफाइड नहीं किया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने फंजाई और एल्गी को एक ही किंगडम में रख दिया गया है, जिसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो इसको इस कमी को दूर किया गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि विटाकर ने किया है। विटाकर ने एक अलग किंगडम प्रोवाइड किया है, और उस अलग किंगडम में उन्होंने क्या कर दिया कि फंजाई को प्रोटिस्टा से निकाल करके फंजाई किंगडम में रख दिया। तो फाइव किंगडम हो गया। फाइव किंगडम में क्या हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो फाइव किंगडम में हमने देखा कि जो प्रोटिस्टा में फंजाई रखा था उसको निकाल करके एक अलग किंगडम में रख दिया, दैट इज़ फंजाई किंगडम। ठीक है। तो अब बैक्टीरिया और फंजाई का एक सेपरेट जगह हो गया क्लासिफिकेशन में, और जितने भी टाइप के बैक्टीरिया थे वो मोनेरा में प्रेजेंट थे, जितने भी टाइप के प्रोटोजोआ थे वो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थे, जितने डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फंजाई थे वो उनको रख दिया गया है किंगडम फंजाई में। बाकी प्लांटी में जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांटी में रख दिया गया है, और एनिमल्स में जो सभी एनिमल्स में थे वो
इस एनिमल में रख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कौन कौन से उन्होंने यूज़ किए हैं। पहला तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, सेल टाइप, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एज वेल एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप टू क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज़ किया गया था, विटेकर ने किया था। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो रिसेंट क्लासिफिकेशन आया है दैट इज़ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में किंगडम को ना यूज़ करके डोमेन यूज़ किया गया है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया है। और उस 3 डोमेन में क्या थे, यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। प्रोकैरियोटिक को यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया में 2 डिफरेंट डोमेन में क्लासिफाइड कर दिया, और यूकैरियोट को एज सच जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे वो यूकैरियोट में प्लेस कर दिया। मीन्स प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इन सभी को यूकैरियोट में रख दिया गया, और यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया को बैक्टीरियाज को डिफाइन कर दिया गया है इन 2 डोमेन में।